Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important MCQs of the topic differentiation for MHTCET. This is lecture number 9, and before this up to 8 lecture we have solved 96 important and most selected MCQs of differentiation for MHTCET. So student, before starting the MCQ number 97, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So here, this is the question number 97, and this question number 97 is homework question of the last lecture number 8. So let us try to solve this MCQ. If you have solved this, please check the answer. So what is given in this question number 97 here? 97 is here, and in this we have given that if derivative of tan inverse of ax plus bx, tan inverse of a plus bx का derivative at x equal to 1, at x equal to 0 is 1, if the derivative of tan inverse of a plus bx at x equal to 0 is 1, then we have to find the value of 1 minus b cube plus a to the power 6. Okay, so here we have given the derivative of tan inverse of a plus bx at x equal to 0 as 1. Derivative of tan inverse of a plus bx at x equal to 0 is 1. So we will find the derivative of this function, which is already given to be 1, and then we have to find the value of this 1 minus b cube at plus a to the power 6. Okay. So first differentiate this function with respect to x. Tan inverse of f of x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी a प्लस बी एक्स का स्क्वायर होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स. तो a इज कॉन्स्टेंट हुज डेरिवेटिव 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स इज b, where b is constant, derivative of x with respect to x is 1. So value of this function at this x equal to 0 is 1. Now I will put x equal to 0. So after substituting x equal to 0, I will get b upon, if x equal to 0, 1 plus x equal to 0, a plus 0 is a square is equal to 1. So by now solving this expression, I have to find the value of this new expression 1 minus b cube plus a to the power 6. So how to solve this? So here I have this 1 plus a square will be equal to b. अब दोनों साइड से मैं क्यूब करूँगा. I will cube on both side to find the value of this expression. So by cubing on both sides, 1 plus a square cube is equal to b cube. So a plus b cube का फॉर्मूला यूज करेंगे. a cube a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Using that formula of expansion, we will get 1 cube as 1 plus 3a square. 1 square is 1 into a square plus 3ab square. तो a होगा a square का स्क्वायर a to the power 4 प्लस लास्ट टर्म का क्यूब a square का क्यूब होगा a to the power 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इज इक्वल टू b cube, right? So here we have to find the value of 1 minus b cube plus a to the power 6 is equal to, बाकी ये दो टर्म्स राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a to the power 4. So I will take minus 3a square common from these two terms, minus 3a square common लेंगे तो मुझे मिलेगा 1 plus a square. But in the options are given in terms of both a and b. So we can replace this 1 plus a square. We can replace this 1 plus a square by b here. Here value of 1 plus a square is b. So by substituting 1 plus a square as b, I will get minus 3a square b. So this is the answer to this question number 97, which is the homework question of the last lecture.
अगर आपका आंसर -3a² b है, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 97 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MSTCT मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड MCQs। तो देखिए -3a² b, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, and this is the question number 98 of differentiation. See the next 98, what we have given, whose derivative we have to find. I have given this function y equal to, I have given this function y equal to x tan y, and I have to find dy by dx. So here y is equal to x into tan y, and I have to find the dy by dx. So I will differentiate this function with respect to x. सो dy by dx इक्वल टू u इंटू वी यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x इंटू tan y, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, tan y का डेरिवेटिव sec² y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन है मेरा tan y। ओके, सो दिस विल बिकम dy by dx इंटू dy by dx कॉमन लेंगे तो I will get 1 minus x sec² y is equal to tan y, and dy by dx is equal to, I will get tan y upon this 1 minus x into sec² y. So here this is the dy by dx, but in option I have not this answer, option में ये आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो आई थिंक आंसर इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y. सो हियर व्हाट वी कैन डू, tan y अपॉन 1 माइनस एक्स sec² y को फिर से tan y में कन्वर्ट करेंगे, sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा। सो ये बनेगा 1 प्लस tan² y. सो दिस विल बी tan y upon 1 minus x, 1 minus x minus x tan² y. Okay, so what we can do, see the options ऑब्जर्व कीजिए, आप भी इसको ट्राई कीजिए, which option can be correct. So I think it is better to शिफ्ट दिस tan y की वैल्यू यहाँ से शिफ्ट करेंगे, दिस tan y कैन बी रिटर्न एज, दिस tan y कैन बी रिटर्न एज y बाय x। ऐसा करके देखते हैं हमें आंसर मिलता है या नहीं। सो tan y इज y अपॉन x, सो y अपॉन यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा x माइनस x² माइनस x² tan² y. Here what I have done, I have substituted tan y as y by x, so y upon x, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा, x माइनस x² माइनस x² tan² y. So now I have this answer y upon x minus x², again this x² tan² y. So see this term x² tan² y, which is the original value of y, x tan y is y, so x² tan² y can be written as what, y². So this is the answer to this question. dy by dx is y upon x minus x² minus y². So this is the option B. Option B इसका correct है. Okay, and here is the question number 99. So see the question number 99, what we have given, क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है e⁻ tan इनवर्स ऑफ y माइनस x² अपॉन x², x इक्वल टू e⁻ tan इनवर्स ऑफ y माइनस x² अपॉन x², ऐसा मुझे फंक्शन दिया है। एंड dy बाई dx इज ऑल्सो गिवन, dy बाई dx इज ऑल्सो गिवन, तो उस dy बाई dx में मुझे अननोन फाइंड आउट करने का है f ऑफ x। ओके स्टूडेंट, तो पहले मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन by comparing our derivative with this derivative we can find the f of x. So I will write this function x equal to e⁻ tan inverse of y minus x² अपॉन दिस x²। तो इससे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पावर में है ई के, तो आपको समझ में आया होगा, लॉग लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो
log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ दिस, यानी ये होगा tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू log e होगा. log e कितना होता है 1. सो बाय टेकिंग log वी हैव दिस इक्वेशन. सो अगर इसको हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस तरह का मुझे, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बाय डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, क्योंकि फंक्शन काफ़ी बड़ा दिख रहा है. सो आई विल शिफ्ट दिस tan इनवर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये बनेगा tan ऑफ log x इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y. सीयर पहले मैंने tan इनवर्स को शिफ्ट किया है, tan इनवर्स log x, ये अपॉन में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू y होगा. नाउ आई विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी. सो dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे पहले मैं एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करता हूँ. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस यहाँ पे लगाऊंगा u इंटू वी. सो फर्स्ट इंटू सेकेंड. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan ऑफ log x, tan ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ f ऑफ x इज sec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x. तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x. सो दिस इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इज tan ऑफ log x. सेकेंड फंक्शन इज tan ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ओके. नाउ हियर बाय टेकिंग 2x इज हियर, 2x इज ऑल्सो हियर. तो ये दोनों टर्म से हम 2x कॉमन लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन dy बाई dx. उस dy बाई dx को आप ऑब्जर्व कीजिए, टेकिंग 2x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड दिस लास्ट टर्म. तो 2x कॉमन लेंगे तो मुझे मिलेगा 1 प्लस tan ऑफ log x प्लस दिस. अब ये फंक्शन बचा है, इसमें का एक x, ये एक x से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ log x. एंड माई गिवन dy बाई dx लाइक दिस. इसी तरह का मेरा dy बाई dx है, तो यहाँ पे गिवन dy बाई dx इज माइनस x इंटू एफ ऑफ x. दिस टर्म एज इट इज 2x इंटू 1 प्लस tan of log x. ओके, सो बाय कंपेयरिंग दिस टू dy बाई dx, दोनों dy बाई dx को हम कंपेयर करते हैं तो मेरा f ऑफ x होगा. व्हाट विल बी द f ऑफ x? कंपेयर दिस टू टर्म्स. हियर f ऑफ x इज माइनस, यहाँ पे शिफ्ट होगा माइनस सेक स्क्वायर ऑफ log x. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 99. f ऑफ x इज माइनस सेक स्क्वायर ऑफ log x. कंपेयर दिस टू टर्म्स, इस दो टर्म को कंपेयर करके हमें आंसर मिलेगा. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 99, माइनस सेक स्क्वायर ऑफ log x. ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MST/CT. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. 100 क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट वी हैव गिवन. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन है. आई हैव गिवन x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a sin क्यूब t एंड आई हैव टू फाइंड dy बाई dx. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. dy बाई dx इज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t. सो आई हैव टू फाइंड dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ x एंड y ही मुझे फाइंड आउट करने का है. सो यहाँ पे मुझे cos t मिलेगा. cos क्यूब t इज x बाई a टेकिंग क्यूब रूट. cos t विल बी x बाई a टू द पावर 1/3 एंड सिमिलरली sin क्यूब t क्या होगा y बाई a टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. आई हैव दिस वैल्यू ऑफ sin t एज y बाई a टू द पावर 1/3. तो ये दो स्टेप आपको समझ में आने चाहिए. x और y मुझे दिया है. cos क्यूब t मेरा x बाई a होगा टेकिंग क्यूब रूट. cos t की वैल्यू x बाई a टू द पावर 1/3. y बाई a इक्वल टू साइन क्यूब t. साइन क्यूब t की वैल्यू होगी y बाई a टू द पावर 1/3 टेकिंग क्यूब रूट. इस तरह से मुझे साइन t और cos t मिल गया है. हम इसको t से t को एलिमिनेट भी कर सकते हैं.
लेकिन हम पैरामेट्रिक का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्टली. सो dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. If x and y are the functions of t in the parametric function, then dy by dx is dy by dt upon dx by dt. So first I have to differentiate this y with respect to t. A constant derivative of sin cube t होगा 3 sin square t into derivative of sin t होगा cos t. Okay. Now dx by dt मुझे फाइंड आउट करने का है, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t. So differentiating this with respect to t, a constant, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब टी मिलेगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी इज माइनस साइन टी. ओके, तो आंसर मुझे मिल गया है. सो दिस ए 3 विल गेट कैंसल, वन ऑफ द साइन टी इज कैंसल, वन ऑफ द कॉस टी इज कैंसल. सो इट इज माइनस ऑफ साइन टी अपॉन कॉस टी. तो इसीलिए मैंने पहले साइन टी और कॉस टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड आउट की है. सो दिस इज माइनस ऑफ साइन टी यानी y बाई ए टू द पावर 1/3, कॉस टी यानी x बाई ए टू द पावर 1/3, यानी दिस बाय दिस. तो इसमें a की टर्म कैंसिल होगी, तो ये मिलेगा y बाई एक्स टू द पावर 1/3. सो दिस इज द dy बाई dx फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 100. तो ये इसका करेक्ट क्वेश्चन आंसर है, माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर 1/3. देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर 1/3. अगेन ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 100. ओके स्टूडेंट्स, now we will see the 101. So this is the 101 of differentiation for MSTCT. What we have to find? We have to find the derivative of this function with respect to another function. Derivative of one function with respect to another function, that is also the case of parametric functions. So we have to find the derivative of sin inverse x upon 1 plus sin inverse x with respect to sin inverse x. Derivative of sin inverse x upon 1 plus sin inverse x with respect to again sin inverse x. बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. 101 को हम सॉल्व करेंगे. तो दो अलग अलग फंक्शंस हमें दिए हैं. सो आई विल कंसिडर द फर्स्ट फंक्शन एज u एंड सेकंड फंक्शन ऑफ एज v. So that we have to differentiate u with respect to v. So let u equal to पहला फंक्शन क्या है, साइन इन्वर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन इन्वर्स ऑफ x. ये पहला फंक्शन है. एंड v कंसिडर करेंगे हम साइन इनवर्स x. सो आई हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v. सो इट मीन्स आई हैव टू फाइंड du बाय dv. मुझे क्या फाइंड आउट करने का है, du बाय dv, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. बट यार साइन इनवर्स x की टर्म कॉमन दिख रही है, तो u को मैं लिख सकता हूँ v अपॉन 1 प्लस वी. देखिए साइन इनवर्स x को मैंने v कंसिडर किया है, तो मेरा u कैसा होगा, v अपॉन 1 प्लस वी. आई हैव सब्सटीट्यूटेड साइन इनवर्स x इक्वल टू v. सो नाउ आई विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस u विथ रिस्पेक्ट टू v. क्योंकि राइट साइड में v है, तो मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. du बाई dv मुझे मिल जाएगा. सो u बाई v लगा देंगे, u बाई v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 प्लस वी, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू होगा 1 माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वी विथ रिस्पेक्ट टू v. 1 का डेरिवेटिव 0, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v कितना होगा 1. सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. du बाई dv इज दिस v विल गेट कैंसल, सो इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस v होल स्क्वायर. सो 1 अपॉन 1 प्लस, अब v की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. तो मेरा v क्या था मेरा v, साइन इनवर्स x. So it is sin inverse x 1 upon 1 plus sin inverse x का whole square. So this is the correct answer, correct derivative of this function with respect to this function, 1 upon 1 plus sin inverse x का whole square. So this is the correct answer to this question number 101. थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है. ओके, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 102. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स का. 102 क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए आई हैव गिवन दिस y इक्वल टू दिया है x प्लस कॉट एक्स,
y इक्वल टू x प्लस कॉट एक्स दिया है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू। ओके, तो मैं इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करता हूँ। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसको मुझे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने का है। साइन स्क्वायर x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू वट गिवन, y इक्वल टू क्या दिया है x प्लस कॉट एक्स, y इक्वल टू क्या दिया है x प्लस कॉट एक्स। तो काफ़ी इजी है, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। सो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो आई विल फर्स्ट यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ कोसेक एंड कॉट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को मैं फिर से y के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो आई विल यूज़ आइडेंटिटी हियर। सो देखिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सो ये बनेगा माइनस माइनस क्या बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, एज द गिवन in the given expression there is d2y by dx square, so I will again differentiate this function with respect to x. So again differentiating with respect to x, d2y by dx square is equal to माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है फिर से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई विल शिफ्ट दिस कोसेक स्क्वायर एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो इट इज़ 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉट एक्स। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ गिवन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आगे इसमें 2x ऐड करके दिया है, तो मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं भी इन दोनों साइड्स में 2x ऐड करूँगा। सो एडिंग 2x ऑन बोथ साइड, so I have this sin square x into d2y by dx square plus 2x, so 2x plus 2 cot x, दोनों साइड में मैंने 2x ऐड किया है। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, टेकिंग 2 कॉमन आई हैव दिस x प्लस कॉट एक्स, आई हैव दिस x प्लस कॉट एक्स। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। एंड दिस 2 इंटू एक्स प्लस कॉट एक्स ओरिजिनल फंक्शन देखें, हियर इज वैल्यू ऑफ एक्स कॉट एक्स इज अगेन व्हाट y, सो दिस इज इक्वल टू 2y। सो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2y। वेरी बेस्ट क्वेश्चन, 2y इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस 2y इज इन लास्ट ऑप्शन, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द 103 ये क्वेश्चन देखिए डेरिवेटिव का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 103 गिवन द डेरिवेटिव पहले से दिया हुआ है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन k। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन है। सो आई हैव गिवन द डेरिवेटिव मुझे पहले से दिया है, तो मैं फंक्शन ही कंसिडर कर लेता हूँ। y इक्वल टू मुझे किस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है 10 to the power log of cosec x to the base 10. Okay, so given function is 10 to the power 10 to the power cosec x 10 to the power 10 to the power log of cosec x to the base 10, इस तरह का ये फंक्शन दिया है। इसका डेरिवेटिव मुझे ऑलरेडी गिवन है और उस डेरिवेटिव में एक अननोन है कि उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है। सो सी ऑब्जर्व दिस फंक्शन, इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं लॉग का एक रूल है, काफ़ी फेमस रूल है, ए टू द पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए टू द पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट एफ ऑफ एक्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ए रूल पता है लॉग का, फिर से देखिए ए टू द पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज ए टू द पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कोसेक एक्स टू द बेस ए। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कोसेक एक्स। काफ़ी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट नोन टू दिस रूल, प्लीज राइट डाउन दिस रूल, ए टू द पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए इज एफ ऑफ एक्स।
So using this rule of logarithm, I have this y is equal to 10 to the power a to the power log of f of x. ये मेरा f of x है cosec x, so a to the power log of f of x to the base a डायरेक्टली होगा cosec x. ओके, अब इसका डेरिवेटिव मुझे दिया है. क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल बन गया है. तो इसका डेरिवेटिव होगा ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए. सो 10 टू द पावर कोसेक एक्स इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स. कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. सो दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 इंटू 10 टू द पावर कोसेक एक्स into 10 to the power cosec x into this cosec x into cot x into this cosec x into cot x. and here my given dy by dx का डेरिवेटिव क्या दिया है माइनस k टाइम्स 10 to the power cosec x into cosec x into cot x. तो इसी तरह का मुझे फंक्शन दिया है. अब इन दोनों स्टेप्स को, दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके मुझे k की वैल्यू दिखाई देगी. तो आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ k हियर. माइनस माइनस सेम है, बाकी के टर्म्स भी सेम है. सो हियर k क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द k. सो हियर k इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ 10. लॉग ऑफ 10 इसका करेक्ट आंसर है लॉग ऑफ 10. सो लॉग ऑफ 10 इज इन द लास्ट ऑप्शन. तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, and now it's time to solve the next question number 104. so this is the 104. क्या दिया है क्वेश्चन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इवन ऑड फंक्शंस अगर आपको मालूम है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज गिवन हियर f इज एन ऑड फंक्शन. f ऑफ x एक ऑड फंक्शन है. उसमें मुझे वैल्यू दी है f डैश ऑफ 5. f डैश ऑफ 5 दिया है -2 and I have to find the value of f dash of -5. okay, so f is an odd function. f is an odd function. तो इवन ऑड फंक्शन आपको पता होना चाहिए कौन से फंक्शंस को इवन कहते हैं, कौन से फंक्शंस को ऑड कहते हैं. सो व्हाट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. सो जस्ट वी विल रिवाइज दिस कंसेप्ट. अगर मेरे पास एक कोई फंक्शन है f ऑफ x एंड इफ f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x है, f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x है तो ये f ऑफ x हो जाता है इवन फंक्शन. अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस f ऑफ x है तो दिस फंक्शन f ऑफ x बिकम्स व्हाट, ऑड फंक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x स्क्वायर ये फंक्शन है, इफ आई रिप्लेस दिस x बाय माइनस एक्स दिस विल बी अगेन x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज इवन फंक्शन. सिंपल है. अगर कोई x क्यूब मैं लिखता हूँ तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स को तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाता है, तो वो बनेगा ऑड फंक्शन. साइन एक्स ऑड फंक्शन है. कॉस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और कॉस एक्स इज इवन फंक्शन. साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन ऑफ एक्स, सो साइन एक्स इज ऑड फंक्शन. ओके, सो हियर f इज एन ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन है इसलिए मैं लिख सकता हूँ f ऑफ माइनस एक्स. आई कैन राइट दिस ऑड फंक्शन की कंडीशन, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x. नाउ आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ. मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है f डैश ऑफ -5. f डैश ऑफ -5 मुझे फाइंड आउट करने का है. तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इज f डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स होगा -1. ये माइनस एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x. सो दिस इज पुट x इक्वल टू 5. तो ये माइनस ऑफ f डैश ऑफ -5 माइनस ऑफ f डैश ऑफ -5 पुट x इक्वल टू 5 इज इक्वल टू माइनस f डैश ऑफ 5. ओके, तो मुझे वैल्यू दिए है क्वेश्चन में f डैश ऑफ 5. f डैश ऑफ 5 मुझे गिवन है और f डैश ऑफ 5 कितना है -2. सो इट इज़ माइनस ऑफ f डैश ऑफ 5 गिवन है -2. सो दिस इज f डैश ऑफ -5. तो ये +2 होगा, ये माइनस से फिर से माइनस होगा
तो इस तरह से मुझे एफ डैश ऑफ -5 कितना मिलेगा, -2. सो -2 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 104 and this -2 correct answer is in the option 2. Okay, and this is the 105 most important question. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें यूज़ करने का है. डिवाई बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने का है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. फर्स्ट आई विल राइट दिस functions. I have to find this d2y by dx square at x equal to pi by 4. Okay students, so see here 105 एक एक फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ. व्हाट इज गिवन x क्या दिया है, a इंटू कॉस थीटा, a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इस तरह का ये फंक्शन है. तो a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा. ओके, एंड y भी मैं लिख लेता हूँ. y क्या है मेरा, a इंटू व्हाट इज y इज साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा. ओके, सो टू फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स. मुझे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा. सो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का है. So dy by dx is parametric function dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta यानी मुझे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. a कांस्टेंट. ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस u इंटू वी यूज़ करना पड़ेगा. थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा, ये प्लस होगा फिर से माइनस होगा u इंटू वी, एंड कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा 1. u इंटू वी यूज़ किया है. देखिए ए कांस्टेंट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, u इंटू वी फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से माइनस है तो फिर से माइनस होगा. सेकंड फंक्शन इज कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1. सो दिस इज व्हाट dy बाई डी थीटा. नाउ आई विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, u इंटू वी प्रोडक्ट है. सो फर्स्ट फंक्शन इज थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन इज साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा 1. सो बेसिक पॉइंट से बाय u इंटू वी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यूज़ किया है. सो यहाँ पे a कैंसिल होगा, प्लस कॉस माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल. सो यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स आ रहा है थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा, अगेन थीटा विल गेट कैंसिल, एंड टैन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा. सो दिस अप टू dy बाई डी एक्स इट इज़ वेरी सिंपल, बट वी हैव टू फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. सेकंड डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करने का है. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट करने के दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे रुक जाते हैं, दे फॉरगेट टू अगेन डिफरेंशिएट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें भूलने का नहीं है. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स इसे मल्टीप्लाई करने का है. सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा. अब मेरा डी एक्स बाई डी थीटा इज दिस, डी एक्स बाई डी थीटा क्या था मेरा, ए थीटा साइन थीटा. डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा. दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा. देखिए डी एक्स बाई डी थीटा ये पूरा है, यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो चुका है, तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, ए थीटा कॉस थीटा. तो उसका मुझे रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखने का है, बिकॉज आई हैव टू राइट डी थीटा बाई डी एक्स. फर्स्ट आई विल राइट हियर dx by d theta is what, a theta into cos theta. Okay, but I have to write d theta by dx, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 upon a theta into cos theta. And I have to find this d2y by dx square
at x equal to pi by 4. I have to find this value at x equal to pi by 4. तो थीटा की जगह पे मुझे pi by 4 सब्स्टिट्यूट करने का है. सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4, सेक ऑफ पाई बाय 4 होता है √2 का स्क्वायर 2 अपॉन ए इंटू थीटा है पाई बाय 4. कॉस ऑफ पाई बाय 4 इज अगेन 1 बाय √2. ओके, तो ये 4 इंटू 2 होगा 8 इंटू ए √2 अपॉन ए पाई. तो इस तरह का ये आंसर है. देखिए कौन से ऑप्शन में है. राइट, दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन. 8√2 अपॉन ए पाई इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. पैरामीट्रिक का डिफ्रेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने है. 105 8√2 अपॉन ए पाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 105. And now it's time for the question number 106. See the question number 106. काफ़ी important question है. Second derivative पूछा है 106. See the question. If x square plus 2hxy plus by square equal to 0, then d2y by dx square is equal to. This is one of the most important shortcut of differentiation. इसका डायरेक्ट आंसर होता है 0, क्योंकि in this case dy by dx is y by x. जब भी कभी dy by dx y by x होता है, एट दैट टाइम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. तो इसका आंसर हमें 0 ही होगा. क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो दिस इज द 106. यहाँ पे मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन का ये इक्वेशन है. दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. जब भी कोई दो लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इन दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन इस तरह का होता है. एंड दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई एंड वाई. इस इक्वेशन के हर टर्म की डिग्री 2 है. यहाँ पे x का पावर 2 है, x इंटू वाई 1 प्लस 1 2, यहाँ पे y का पावर 2, यानी हर एक टर्म की डिग्री 2 है. देयरफॉर दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन. और हर टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए उसे होमोजीनियस कहते हैं. तो जब भी कभी ऐसा इक्वेशन आपके सामने आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, एट दैट टाइम dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट 0. इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट आपको है ध्यान में रखने का है. तो हाउ वी गेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एज 0, एक बार एक्सप्लेन करके भी देता हूँ. वैसे तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट आई विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन. पे इम्प्लिसिट फंक्शन है तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज़ करेंगे. माइनस आई विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट. तो ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, तो ये 2ax होगा. यहाँ पे 2h कांस्टेंट, वाई बी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा. बी कांस्टेंट, वाई इज कांस्टेंट, by स्क्वायर इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होगा. ओके, फिर से इसको डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0. यहाँ पे 2hx कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, प्लस b कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y इंटू b, तो ये बनेगा 2by. सो दिस इज द dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कैंसिल करके मुझे मिलेगा ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, माइनस ऑफ ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई. सो दिस इज द dy बाई डी एक्स. लेकिन देखिए अगर मैं इस फंक्शन को फिर से इस तरह से लिख सकता हूँ, ax स्क्वायर, इसे मैं फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ax स्क्वायर. अब ये 2hxy है तो मुझे इसे लिखने आता है hxy प्लस hxy. मुझे 2hxy को मैंने लिखा है 1hxy प्लस 1hxy प्लस लास्ट टर्म देखिए by स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा ax प्लस hy प्लस y कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा hx प्लस by इक्वल टू 0. सो x इंटू ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस y इंटू hx प्लस by. Okay, so this minus of ax plus hy upon hx plus by is equal to मिलेगा मेरा
y by x, राइट, माइनस ऑफ एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई क्या होगा, y by x, एंड दिस माइनस एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, व्हाट इज दिस, dy बाई डी एक्स। सो ये मेरा dy बाई डी एक्स है। ओके, सो जब भी आपके सामने इस तरह का होमोजीनियस इक्वेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो तब आपको dy बाई डी एक्स श्योरली और कॉन्फिडेंटली कहने का है y by x। एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दिस इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट, जब भी dy बाई डी एक्स y by x होता है एट दैट टाइम उसका सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। सो 0 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 106। होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स में ध्यान में रखने के, कोई भी आपके सामने इस तरह का इक्वेशन आता है, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर कोई पूछेगा आपको इसका dy बाई डी एक्स बोलो तो y बाई एक्स कहिएगा, अगर कोई पूछेगा आपका इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलो तो आप 0 इसका आंसर देने का है। सो इस तरह का ये शॉर्टकट है, 0 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 107, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी बेस्ट इन्फिनाइट सीरीज इसमें दी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 107 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द गिवन फंक्शन, y इक्वल टू क्या फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है। प्लस 1 अपॉन, फिर से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। इन दिस केस आई हैव टू फाइंड दिस dy बाई डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन दिखने को फंक्शंस काफ़ी बड़े दिखते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इन्फिनाइट सीरीज़ के फंक्शन को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको डेरिवेटिव टॉपिक में दिखाई देंगे। y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स अप टू इन्फिनिटी। काफ़ी सिंपल है, फंक्शन रिपीट होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व करने का है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इस फंक्शन को मैं अगर रीड करता हूँ, इस फंक्शन को अगर मैं रीड करता हूँ तो मैं फिर से वही कहूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो वही कहूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। सो आई कैन से दैट दिस फंक्शन एज y, इसे मैं फिर से y लिखता हूँ, अप टू इन्फिनिटी होने के कारण इसे मैं फिर से y लिख सकता हूँ। सो दिस इज अगेन एफ ऑफ एक्स दैट इज़ y। तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल हो गया है। मल्टीप्लाइंग बाय y, सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, y से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 रखेंगे। नाउ दिस बिकम्स वेरी सिंपल एंड आई हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो फिर से मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की मेथड यूज़ करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इन न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग इन डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। सो y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस y कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, y कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x माइनस 1 इज अगेन कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो x स्क्वायर का y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 1, फिर से 1 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज द आंसर, माइनस माइनस प्लस 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द
dy by dx फॉर दिस इन्फाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन। सो देखिए 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 108 लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा 109 दैट विल बी द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। हमारे लेक्चर में हर लास्ट 13 नंबर का क्वेश्चन होता है होमवर्क का क्वेश्चन, उसे आपको सॉल्व करने का है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करने का है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 108। सो सी आर 108 क्या दिया है, what I have given, if log of x plus y equal to log of xy plus a, log of x plus y equal to log of xy plus a, then I have to find dy by dx. So very easy and simple question. I will write this equation log of x plus y equal to log of xy plus a, and अगर मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो ऑप्शन में मुझे e नज़र आ रहा है। सो आई हैव टू यूज़ द रूल्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के रूल्स मुझे यूज़ करके इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बिफोर डिफरेंशिएटिंग आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। ओके, सो दिस बिकम्स log ऑफ x प्लस वाई, log ऑफ x प्लस वाई माइनस log ऑफ एक्स वाई, log m माइनस log n, log ऑफ m बाई n। तो log ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू a होगा। इसका बेस कुछ भी नहीं है, यानी e बेस है। Okay, so I can write this as x plus y, I can write this as x plus y upon xy equal to e to the power a। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे e to the power a की टर्म दिखाई दे रही है, और दिस इज x plus y equal to xy into e to the power a माइनस इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये बन गया है इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट अगेन विथ बाय द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन से इसको मैं इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। डिवाइड बाय dx माइनस इन ब्रैकेट। सो डिफरेंशिएटिंग दिस होल फंक्शन इन द न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, y इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस e टू द पावर a कांस्टेंट and y is again constant, and derivative of x with respect to x कितना होगा 1। ओके, अतः अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करने का है, लेकिन x कांस्टेंट है ये ध्यान में रखने का है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू y हमें डिफरेंशिएट करने का है। तो x कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस e टू द पावर a कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है x एंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 1। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या एडजस्टमेंट किया है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y इंटू ई टू द पावर a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर a। तो देखिए y इंटू ई टू द पावर a माइनस 1 अपॉन, सॉरी दिस इज़ 1 माइनस c होगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 108। वेरी नाइस एंड बेस्ट क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को इस मेथड से सॉल्व किया है, और आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप इन टाइप के इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ईच टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय dx के टर्म्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेने पड़ेगी, बाकी के टर्म्स राइट हैंड साइड में, एंड देन यू कैन फाइंड डिवाइड बाय dx। बट दिस इज़ द बेस्ट मेथड, एंड काफ़ी कम टाइम में इसमें आपका आंसर मिल सकता है। सो दिस इज़ 108, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने का है। सो ओके स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। 120 MCQs हम सॉल्व करेंगे। 10 लेक्चर्स का हमारा टारगेट है। ऑल द 120 MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट books. So students, okay, bye.